Hello everyone, welcome to Law Learning School. Today we are discuss most important 40 MCQs of Indian Penal Code 1860. इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, वो MCQ सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है IPC की एंड ये सेकंड वीडियो है MCQ सीरीज़ ऑफ IPC की. यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके उसको देख सकते हैं. अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की. एक्सटोर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फेयर ऑफ डेथ और अ ग्रीवियस इज डील्ड अंडर सेक्शन 385 of IPC and section 386 of IPC and section 387 of IPC and section 388 of IPC. The right answer is option B, 386 of IPC. Next question is, which of the following is true is of the word judge under section 19 of IPC? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है द वर्ड जज के लिए जो सेक्शन 19 में बताई गई है. एक ऐसा पर्सन जो डिनोट करता है अ पर्सन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज, जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड है एज अ जज. और ऑप्शन बी, denote every person who is empowered by law to give a definitive judgment in any legal proceeding, civil or criminal. every person जिसको पावर है लॉ के द्वारा to give a definitive judgment in any legal proceeding, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो. ऑप्शन डी डिनोट करता है एक बॉडी ऑफ अ पर्सन जिसको पावर दी गई है लॉ के द्वारा जजमेंट देने की. देन ऑप्शन डी बात करता है ऑल ऑफ द अबव. देन राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ये सारी ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, वो डिनोट करती है द वर्ड जज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पर्सन voluntarily causing hurt and committing or attempting to commit a robbery or any other person jointly concerned in such robbery is deed under. ऐसा कोई पर्सन जो वॉलंटरली कॉज करता है हर्ट कमिट करने के लिए रॉबरी और अटेम्प्ट करने के लिए रॉबरी को. एनी पर्सन जो है जॉइंटली कंसर्न इन सच रॉबरी इज डील अंडर सेक्शन ऑप्शन ए सेक्शन 394 ऑफ IPC, सेक्शन 395 ऑफ IPC, ऑप्शन सी इज सेक्शन 396 ऑफ IPC एंड option D section 397 of IPC. Then right answer is 394 of IPC. Next question is, which of the following does not fall under the category of the word judge coined in section 19? इनमें से कौन सी पर्सन है जो फॉल नहीं करते कैटेगरी ऑफ द वर्ड जज की. ऑप्शन ए मैजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी अ मेंबर ऑफ पंचायत, ऑप्शन सी इज कलेक्टर एंड ऑप्शन डी बिजनेसमैन. देन राइट आंसर इज ऑप्शन डी बिजनेसमैन, जो फॉल नहीं करता कैटेगरी ऑफ द वर्ड जज की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एडेड क्लॉज 11 एंड एक्सप्लेनेशन 4 in section 21 of IPC? Option A, Act 39 1920 and option B, Adaptation of Law Order 1950 and option C is Act 2 1950 and option D is Anti-Corruption Act 1964. Then right answer is Adaptation of Law Order 1950. Next question is, oral threat or inducement allegedly given by lawyer to appear not to given any statement against accused is option A, amount to commission an offence, and B, does not amount to commission an offence. Option C, can attract discretion of court to consider an offence,
and option D is not none of the above. Then right answer is option P, does not amount to commission an offense. मीन जो oral threat हुआ और induce किया जाता है किसी person को by lawyer to approver not to give any statement against accused, मीन उसके क्लाइंट के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देने के लिए. तो जब क्रिमिनल ट्रायल चलता है तो जब एविडेंस लगता है तो ऐसे पर्सन को इंड्यूस किया जाता है कोर्ट में, जैसे उसको प्रूव करने के लिए कि वो ऐसी स्टेटमेंट ना दे. तो उस ऐसी जब ट्रायल चलता है तो उसे तो उस एडवोकेट को किसी ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं माना जाता कि जो वो पर्सन है, वो एडवोकेट है जो किसी पर्सन को स्टेटमेंट देने के लिए इंड्यूस कर रहा है, देने से रोक रहा है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज theft under section 397 of IPC is tenable if a property is not a movable property, property cannot be moved in order to such talking, and subject matter is not a property, and option D both A and B. Then right answer is both A and B. Mean property is not a movable property and property cannot be moved in order to such taking. Then right answer is option D. Next question is the motive under section 81 of IPC should be. बोले section 81 of IPC का जो motive है वो है prevent to harm to person, and option B prevention of harm to property, and option C both A and B, and D is either A and B. Then right answer is option D, either A and B. Next question is infancy is an exception has been provided under option A section 80 of IPC, section 81 of IPC, and section 82 of IPC, and section 84 of IPC. Then right answer is section 82 of IPC. Next question is XYZ is a person having sufficient food but does not provide same food to a beggar who dies of hunger. बोला है कि XYZ एक पर्सन है, उसके पास सफिशिएंट फूड है बट वो देता नहीं है उस भिखारी को जो कि भूखा है, और उसके बाद क्या होता है, वो भिखारी मर जाता है. देन XYZ is a guilty of murder, attempts to murder, causing death by rash or negligent, and no offense. Then right answer is no offense, क्योंकि यहाँ पर XYZ की कोई लाइबिलिटी तो है नहीं कि उसको फूड प्रोवाइड करना है, उसको ना तो उसने कोई उसको हार्म किया, वो तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, मतलब उसकी डेथ होगी. देन यहाँ पर XYZ जो है वो गिल्टी नहीं है किसी भी ऑफेंस के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेंसी one person must be instigate the other for the commission of an offense, and there must be an intentional aid by one person to another for the doing of an offense, and some act or illegal omission must take place or pursuance of an engagement between two or more persons to do an unlawful act, and option D none of the above. Then right answer is option C, same act or illegal omission must take place in pursuance of any engagement between two or more persons to do an unlawful act. होता है abetment for abetment of by criminal conspiracy. Next question is section 82 of IPC provide that nothing is an offense which is done by a child.
सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी जो है वो प्रोवाइड करता है कि कोई भी ऑफेंस नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा एक्ट किया जाएगा जो कि ऑफेंस नहीं है बाय अ चाइल्ड। कौन से चाइल्ड को? ऑप्शन ए 6 ईयर ऑफ एज के चाइल्ड को, और ऑप्शन बी 7 ईयर ऑफ एज, and option C 9 year of age, and option D 10 year of age. Then right answer is 7 year of age, means 7 साल के बच्चे तक यदि कोई बच्चा जो है वो कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि जो कि ऑफेंस भी हो, तब भी वो ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि 7 साल के बच्चे को माना जाता है कि उसको समझ नहीं होती है किसी भी एक्ट को करने के लिए। मीन 7 साल का बच्चा थोड़ी ना कोई क्राइम कर सकता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन इज स्टेटेड टू बी पार्शियली इनकैप्स दैट अंडर सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी इफ ही इज एज। ऑप्शन ए above 7 year of age and under 12 of year age, and option B is above 7 year and under 10 year, and option C above 7 and under 16 year, and option D above 7 and under 18 years. Then right answer is A above 7 and under 12 year, means 7 साल और 12 साल तक होना चाहिए बच्चा, मीन 7 साल से बड़ा हो और 12 साल से छोटा हो। ओके, अब बात कर लेते हैं कि इन कैप्स का मतलब क्या होता है। इन कैप्स जो है वो, इसका मीनिंग होता है इनकेपेबिलिटी ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। मीन जहाँ पर पर्सन की मतलब बच्चे की जहाँ होगा बच्चा जो होगा वो इनकेपेबल होगा कोई भी क्राइम करने के लिए। जहाँ पर पार्शियली इनकैप्स बोला गया है, मीन जो 82 में जो सेक्शन है जो 82 का, उस वहाँ पर 7 ईयर ऑफ एज की बात की गई है। मतलब ऐसा कोई ऑफेंस किया जा रहा है वो 7 साल के बच्चे तक किया जा रहा है, उसको होली इनकैप्स बोलते हैं। मीन बच्चा जो है वो कर ही नहीं सकता ऐसा कोई ऑफेंस, क्योंकि वो बहुत ही छोटा है, उसको समझ ही नहीं। और जो सेक्शन 83 बात करता है वो पार्शियली इनकैप्स की बात करता है, जहाँ पर बच्चे की उम्र जो है वो 7 साल से 12 साल के बीच में है। उसका मेच्योरिटी लेवल देखा जाता है कि क्या उसको कुछ कोई ऑफेंस करने की समझ है या नहीं है। तो ये हो गया पार्शियली इनकैप्स। मीन वहाँ पर देखा जाएगा कि बच्चा जो है वो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है। ओके, नेक्स्ट बात करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी ले डाउन द रूल ऑफ होली इनकैप्स, पार्शियल इनकैप्स और बोथ ए एंड बी एंड आइदर ए एंड बी। देन होली इनकैप्स मीन सेक्शन 82 बात करता है ऐसे बच्चे के द्वारा ऑफेंस किया जा रहा है जो कि 7 साल से भी छोटा है, वो क्या होगा? होली इनकैप्स। मीन उसको वो कैपेबल ही नहीं है कि वो क्राइम कर सके, ऑफेंस कर सके। मीन होली इनकैप्स, इनकैपेबिलिटी की बात करता है ऑफ चाइल्ड 7 ईयर ऑफ एज तक। 82 कि 7 साल तक बच्चा, 7 साल तक जो बच्चा होगा वो कोई ऐसा ऑफेंस कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज under section 82 and 83 of IPC an offense is punishable if it is done by a child. Mean under section 82 and 83 of IPC में एक offense है जो punishable है यदि वो किया जाए of below the 7 or year of age, क्या वो बच्चे की उम्र जो होगी 7 साल से कम होगी, of above the 7 year of age and but below the 12 of year age, और he has not attained the sufficient maturity or understanding। मीन यदि उस बच्चे की उम्र जो है वो 7 साल से ज़्यादा है और 12 साल से कम है, बट उसने जो है उसके पास उसने इतनी मेच्योरिटी नहीं है, उसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसमें अटेन सफिशेंट मेच्योरिटी नहीं है और अंडरस्टैंडिंग भी नहीं,
ऑप्शन सी बात करता है ऑफ अबव 7 year of age but below the 12 year of age having attained sufficient maturity and understanding. मीन ऐसे बच्चा जो 7 साल से बड़ा है और 12 साल से छोटा है बट उसका जो मेच्योरिटी लेवल है, मतलब उसने अटेन कर लिया है वो सफिशिएंट मेच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, कि उसको समझ है कि क्या सही है और क्या गलत है, तब जो होगा वो पर्सन जो होगा, वो जो बच्चा होगा वो लाइबल है किसी ऑफेंस के लिए, पनिशेबल है वो किसी ऑफेंस के लिए. देन राइट आंसर इज ऑप्शन सी. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिम एक्टिस नॉट फिसिट रिया निशी मेंसिट रिया. मीन एक मैक्सिम है ये आईपीसी की, इस जिसका मतलब है अ क्राइम हैज़ टू बी कपल विद द गिल्टी माइंड. मीन एक क्राइम जो किया जा रहा है वो गिल्टी माइंड से किया जा रहा है, इसका ये मतलब है. या ऑप्शन बी बात करता है देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड. मीन कोई क्राइम नहीं हो सकता यदि उसकी गिल्टी इंटेंशन नहीं है, गलत इंटेंशन नहीं, इविल इंटेंशन नहीं है, तब वो क्राइम नहीं होगा कोई भी एक्ट जो किया जाए. एंड ऑप्शन सी बात करता है क्राइम इज एन रिजल्ट ऑफ गिल्टी माइंड. जो क्राइम है वो रिजल्ट है गिल्टी माइंड का. ऑप्शन डी बात करता है क्रिमिनल माइंड लीड्स टू क्राइम. देन राइट आंसर इज ऑप्शन बी, देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड. मीन गिल्टी माइंड के बिना कोई क्राइम नहीं किया जा सकता. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी जो है वो प्रोवाइड करता है मेडिकल इंसैनिटी, लीगल इंसैनिटी, मॉरल इंसैनिटी एंड साउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ एनी काइंड. देन राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लीगल इंसैनिटी. जिन सेक्शन 84 जो बात करता है वो बात करता है act of a person of unsound mind. Okay, the next question is which of the following section have been inserted in the Indian Penal Code 1860 by the Criminal Law Amendment Act 2013, namely mean क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 का जो आया तब इनमें से कौन कौन से सेक्शन थे वो इंसर्ट किए गए थे आईपीसी में. देन सेक्शन 376A, देन सेक्शन 376B एंड सेक्शन 166A एंड 166B एंड 354C एंड ऑल ऑफ द अबव. देन राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. मीन जब एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 का आया था निर्भया केस के बाद, तो बहुत ज़्यादा सेक्शन में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट की गई थी, उसको ऐड किया गया था बहुत ज़्यादा सेक्शन को. ये सारे ही सेक्शन जो हैं वो ऐड हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉलंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एन एसिड इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर इंडियन पेनल कोड 1860. अंडर मीन वॉलंटरली थ्रो किया जाए, फेंका जाए और अटेम्प्ट किया जाए किसी पर्सन पर, थ्रो एसिड जो है वो फेंका जाए, वो जो ऑफेंस है वो पनिशेबल है अंडर आईपीसी 1860 में, अंडर सेक्शन 326A में, 326B में और सेक्शन 228A में और सेक्शन 228 में. देन राइट आंसर इज 326B में. 326 जो बात करता है वॉलंटरली कॉजिंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर आईपीसी में. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a demand or request for a sexual favor from a woman is punishable is an offense under Indian Penal Code 1860 and जो है वो डिफाइन करता है मीन
यदि कोई पर्सन जो है वो डिमांड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है सेक्सुअल फेवर के लिए किसी वुमेन से, तो वो पर्सन जो है वो पनिशेबल है किस ऑफेंस के लिए? जो ऑफेंस है सेक्शन 354A, 354B एंड 354C and 354D. The right answer is option A, 354A. Next question is to establish section 34 of IPC, a common intention to proved but not overt act to be proved, and option B is common intention and overt act both to, be proved, and option C common intention need not be proved but overt act to be proved, and option D is all of the above. The right answer is option A, common intention be proved but not overt act be proved. Next question is, under section 45 of IPC life denote, जो section 45 of IPC का है वहाँ पर life जो है वो denote करता है word life of human being, life of an animal, a life of human being and animal both, and life of either human being or either animal. Then right answer is life of a human being. Next question is, under section 46 of IPC death denote करता है a death of a human being and death of an animal and death of human being and an animal both and death of either human being or animal. Right answer is option A, डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात करता है. एनिमल जो है वो वर्ड डिनोट करता है एनी लिविंग क्रिएचर इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग एंड एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ए ह्यूमन बीइंग, और ऑप्शन सी इज एनी क्रिएचर लिव और डेड. मीन कोई भी जैसे लिविंग क्रिएचर इंक्लूड करता है लिविंग बीइंग को, या अदर देन ह्यूमन बीइंग और लिविंग और डेड दोनों ही, or either A and C. Then right answer is option B, any living creature other than a human being. Next question is, how many type of punishment have been prescribed under Indian Penal Code 1860? Option A is 3, option B is 6, option C is 5 and option D is 4. Then right answer is C. 5 टाइप ऑफ पनिशमेंट जो है वो डिफाइन की गई हैं आईपीसी में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन और ओनली इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन. यदि कोई ऐसा ऑफेंस बोले इन केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल है ओनली फाइन के लिए और इम्प्रिजनमेंट दी जाए नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए, देन हैज़ टू बी रिगोरस होगी, हैज़ टू बी सिंपल होगी. कैन बी रिगोरस और सिंपल हो सकती है, कैन बी पार्शली रिगोरस और पार्शली सिंपल. देन राइट आंसर इज हैज़ टू बी अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर सेक्शन 498A ऑफ IPC क्रुएलिटी इंक्लूड करता है हरासमेंट ऑफ वुमेन, physical cruelty only, mental cruelty only, and option D is cruelty by wife. And right answer is harassment of women. Next question is, the word document as per section 29 of IPC include any matter express or describe upon by any substance. जो वर्ड डॉक्यूमेंट है जो सेक्शन 29 ऑफ आईपीसी का है वो इंक्लूड करता है एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस. ऑप्शन ए, बाय मीन्स ऑफ लेटर फिगर और मार्क ओनली एंड बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन इंटेंडेड टू बी यूज और विच मे यूज एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर. Option C, both A and B. Option D, none of them. Then right answer is both A and B. Next question is,
Which of the following can be called a document as per section 29 of IPC? A banker check, बैंकर जो चेक होगा वो, या पावर ऑफ अटॉर्नी होगी, या मैप हो गया, एंड ऑल ऑफ द अबव. देन राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. मीन बैंकर के चेक को भी और पावर ऑफ अटॉर्नी को, मैप को, सभी को हम डॉक्यूमेंट की तरह डिनोट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following condition are necessary to fulfill the requirement of section 34 of IPC? Option A, the person must be present or on the sense of occurrence, and option B is there must be a prior concrete or pre-arranged plan, and option C either A and B, and option D is both A and B. Then right answer is D, both A and B. Next question is preparation to commit डकैती is defined किया गया है under section 398 of IPC, under section 399 of IPC, and section 400 of IPC, and section 401 of IPC. Then right answer is section 399 of IPC. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर इज डील डिफाइन किया है अंडर सेक्शन 371 ऑफ IPC, 372 ऑफ IPC, 373 ऑफ IPC, एंड 374 ऑफ IPC. देन राइट आंसर इज 374 ऑफ IPC है जो डील करता है अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट अ न्यू ऑफेंस? इनमें से कौन सा ऐसा सेक्शन है जो क्रिएट करता है कोई न्यू ऑफेंस? सेक्शन 34 ऑफ IPC, एंड सेक्शन 35 एंड सेक्शन 36 ऑफ IPC, एंड सेक्शन 37 ऑफ IPC, एंड ऑप्शन डी इज none of them. Then right answer is option D, none of them. और जो सेक्शन 34 है वो बात करता है एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, एंड 35 बात करता है व्हेन सच एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ बीइंग डन विद क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, एंड जो 36 है वो बात करता है इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन की, और 37 बात करता है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस. इनमें ये जो सेक्शन है इनमें से कोई भी सेक्शन जो है क्रिएट नहीं करता है कोई ऑफेंस, बल्कि एक ऑफेंस के साथ अटैच हो जाते हैं ये सेक्शन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट वॉलंटरली डन इन इफेक्ट and substance in section 39 of IPC mean act done intentionally, act done with the knowledge of and result being crime, and act done when the doer has a crime to believe that the actus rea would be an offense, and option D is all of the above. Then right answer is option D, all of them. And just next question है abetment of any offense if a person abetted does the act with a different intention from that of the abetted is dealt under section 109 of IPC, section 110 of IPC, section 111 of IPC, section 112 of IPC. Then right answer is section 110 of IPC. जो सेक्शन 110 है IPC का वो बात करता है punishment of abetment if person abetted does act with different intention from that of abetter. Okay, the next question is abetment of any offense if abetter is present when offense is committed deal under. मीन अबेटमेंट के ऐसे ऑफेंस में यदि अबेटर जो है वो प्रेजेंट है
जब ऑफेंस जो है वो कमिट किया जा रहा है, वो डिफाइन किया है सेक्शन 114 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 115 of IPC, 116 of IPC, and option D is 117 of IPC. Then right answer is option A, section 114 of IPC. Section 114 बात करता है abettor present when offence is committed. मीन abettor जो है वो present है at the time when offence जो है commit किया जा रहा है. Next question is a public servant concealing a design to commit an offence which it is his duty to prevent if the offence is committed dealt under. मीन एक पब्लिक सर्वेंट है वो कंसील करता है डिजाइन टू कमिट एन ऑफेंस विच, जहां पर उसकी ड्यूटी है रोकना उस ऑफेंस को जो कमिट किया जा रहा है. वहां पर जो पब्लिक सर्वेंट है वो कंसील कर रहा है, छुपा रहा है किसी पर्सन के द्वारा किए गए ऑफेंस को. देन सेक्शन 117 ऑफ आईपीसी डिफाइन करता है, सेक्शन 118 ऑफ आईपीसी जो है वो डिफाइन करता है, सेक्शन 119 ऑफ आईपीसी जो डिफाइन कर सकता है, और ऑप्शन डी इज 120 ऑफ आईपीसी. देन राइट आंसर इज ऑप्शन सी. 119 ऑफ आईपीसी जो है वो बात करता है कि a person concealing a design to commit an offense which it is his duty to prevent. If offense be committed, if offense be punishable with death, and if offense is not committed. The next question is, which of the following punishment of an offender is liable to under the provision of section 53 of IPC? Which of the following जो punishment an offender is liable under the provision of section 53 of IPC? 53 में कौन कौन सी punishment जो है वो डिफाइन की गई है जो किसी पर्सन को दी जाती है यदि कोई पर्सन जो है वो liable होता है to commit an offense. Then option A, death and imprisonment for a life, and imprisonment and fine, and forfeiture of property, and option D is all of them. Then right answer is option D, all of them. Next question is, criminal conspiracy to commit an offense punishable with death and imprisonment for a life and rigorous imprisonment for a term of 2 years apart or apart is dealt under. मीन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी जो है कमिट एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस को करने के लिए जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी है जो की जा रही है वो पनिशमेंट, जिसकी पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट जो है वो 2 साल तक हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है. वो डिफाइन किया है सेक्शन 119B ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 120V of IPC and section 121 of IPC, and option D is of 122 of IPC. And then right answer is section 120B of IPC. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी जो है उसके 2 ही सेक्शन है, सेक्शन 120B एंड सेक्शन 120A, जो चैप्टर नंबर 5A में डिफाइन है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, जिसमें 120A में डिफाइन किया है डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी एंड 120V में बात करता है पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेजिंग और attempting to waging war or abetting the waging of war against the government of India is dealt under section 121 of IPC, section 122 of IPC, section 123 of IPC, section 124 of IPC. Then right answer is option A, 121 of IPC. ओके, आज की इस MCQ सीरीज में इतना ही. यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. और आप इससे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की वीडियो सेक्शन में जाके उस MCQ सीरीज़ की जो फर्स्ट वीडियो है आप उसको देख सकते हैं. ओके.